बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। योर बायोलॉजी टीचर मैडम फरजाना सोहेल here with the third lecture of unit number 12. The name of the unit is coordination and control. Dear students, our today's topic of discussion is spinal cord and reflex arc. हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और उसके साथ साथ रिफ्लेक्स आर्क. व्हाट इज़ एन रिफ्लेक्स आर्क? Dear students, here in front of us we are having the diagram of vertebral column. Vertebral column is present at the center of the back and it is having spinal cord inside it. The medulla oblongata narrows down into an oval shaped hollow cylinder that is the spinal cord. It travels through the vertebral column. The spinal cord is also covered by meninges. अगर ब्रेन का लेक्चर आपको याद हो तो ब्रेन के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने 3 लेयर्स, प्रोटेक्टेड लेयर्स रखे हुए हैं. The name of that layer was meninges. Same meninges is present here in the spinal cord. The spinal cord transmits impulses from the body parts to the brain and from the brain to the body parts. It also acts as a coordinating center for some simple responses, for example, reflex actions. This is about the spinal cord. Now, dear friends, here we are having the anatomy of spinal cord. We can see the cross section of spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देख के हमें पता चलता है कि इसके अंदर के पोर्शन में ग्रे मैटर मौजूद है, विच इज़ हैविंग अ बटरफ्लाई शेप, वेयर एज ग्रे मैटर के इर्द गिर्द वाइट मैटर मौजूद है. ब्रेन में हमारे पास ग्रे मैटर बाहर प्रेजेंट था जबकि वाइट मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में ये वाला केस उल्टा हो जाता है. अगर आपको याद हो तो वाइट मैटर में हमारे पास वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, वेयर एज ग्रे मैटर में जितने भी हमारे पास न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उन तमाम के तमाम एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती. The nerves which arise from the spinal cord are called spinal nerves and they are 31 in numbers, or we can say 31 pairs of spinal nerves that arise from the spinal cord. जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं हमारे पास वो तमाम के तमाम मिक्स्ड नर्व्स होती हैं. ईच कंटेन एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. बोथ स्पाइनल नर्व्स अराइज बाय 2 roots. Both roots unite and form mixed nerves. The dorsal root यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा. This is called the dorsal root and this is called the ventral root. सबसे पहले बात करेंगे dorsal root की. The dorsal root contains sensory axons and ganglion where cell bodies are located. These are the sensory neurons. Whereas when we talk about ventral root contains axons of motor neurons. Now we are going to discuss about the reflex arc. What is a reflex arc? How a stimulus elicites a response. एग्जाम्पल सबसे पहले हम रिफ्लेक्स आर्क की पढ़ेंगे. अ नी जर्क रिस्पॉन्स. नी जर्क रिस्पॉन्स उस रिस्पॉन्स को कहते हैं जो मोस्टली डॉक्टर्स किसी भी पेशेंट का रिफ्लेक्स एक्शन चेक करने के लिए करते हैं. द नी इज़ हिटेड बाय अ हैमर एंड देन as soon as it is hit by the hammer there is a jerk which is produced as a result of this hitting of the hammer, which is called knee jerk response. The question arises that what happened when the hammer hit the knee, the foot jerked up. This is the response. Why? Question arises why. Now we are again revisiting the knee jerk response. Here, what is the stimulus? The stimulus here is the hammer that hits the tendons. The tendons which are present here, when it is hit by the hammer, it is a stimulus. Response क्या होगा अब इसका? The muscles contract causing the foot to jerk upward. पाँव ऊपर की तरफ झटका खाता है. हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं रिफ्लेक्स एक्शंस की. द एरोमा ऑफ योर फेवरेट फूड. आपको जैसे ही अपने फेवरेट फूड की खुशबू आती है तो आपकी सलाइवा प्रोडक्शन शुरू हो जाती है. अ नास्टी ऑडोर. अगर एक बदबू आए तो आपका दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है और आपको चक्कर आने लगते हैं. अ ब्राइट लाइट शाइनिंग इन योर आई. अगर आपकी आंख पे एकदम से बहुत तेज़ रोशनी पड़े, प्यूपिल गेट स्मॉलर. एन इंसेक्ट फ्लाइंग टूवर्ड्स योर आई. जैसे ही आपको अपनी तरफ आता हुआ कोई कीड़ा दिखाई देता है आप फ़ौरन अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं. These are fixed responses to a specific stimulus.
We are going to define reflex actions. What are the reflex actions? 3 keywords should be there in the definition of reflex action. सबसे पहले this is an immediate response. ये वो action है जिसमें हमारा response बहुत quick और immediate होता है to a specific stimulus. किसी भी stimulus के लिए एक specific stimulus जो है तो उसके लिए response immediate होगा without conscious control. और इस एक्शन को हम कहेंगे इनवॉलेंटरी एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ टच होगा फ़ौरन आप अपना हाथ पीछे खींच लेंगे. दिस इज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स. और इसमें स्टिमुलस हमेशा गर्म चीज़ होती है और जब हम अपना हाथ पीछे खींचते हैं तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता. इसी की एग्जांपल हमारी नी जर्क भी है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, हम रिफ्लेक्स एक्शन को कहते हैं कि दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स. क्लासिफाइड अंडर spinal reflex actions controlled by spinal cord and cranial reflexes controlled by brain but not will in head region. Here we can see a reflex arc when we touch a hot object. Here, for example, this pen is hot. As soon as we touch this hot pen, the skin is the receptor and the sensory neurons are going to carry this message towards the spinal cord. The area of the spinal cord which is going to receive this sensation is known as dorsal root. Dorsal root will receive this sensation from sensory neuron. Sensory neuron associative या mixed neuron को message दे देंगे. Mixed neuron, it is going to transmit the order या message with the help of the motor neurons. Motor neurons finally message लेके आएगा and it will end up in the muscles. These muscles are called effectors. यहाँ पे इसको लिखा हुआ है effectors. So this is point number 1, which is the receptor for the stimulus. Now here we are having point number 2, receptor neuron, which are known as sensory neuron. Now here the message is going to be conducted. इसके बाद this is the next point, effector neurons, and then finally the message is going to be given to the effectors that are the muscles. So this makes an arc. ये पूरे का पूरा जो process है उसमें एक arc बनती है. This is called reflex arc. How the message travels from the receptor to the effector. सबसे पहले nerve cells which are called neurons वो message को receive करेंगे और message इनको receive होगा from the stimuli. इस stimuli को receive करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें receptors दिए हैं. Now sensory neuron ये message लेके जाएगा from the receptor to the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिक्स्ड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे जो कि सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज ले लेंगे. सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेने के बाद ये मोटर न्यूरॉन को मैसेज देंगे जो कि मैसेज लेके जाएंगे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स द इफेक्टर. दिस इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क. हियर यू कैन सी यहाँ से हमारे पास आर्क शुरू होता है, लेकिन इस आर्क के लिए सबसे पहले स्टिमुलस का होना ज़रूरी है. सेंसरी न्यूरॉन्स फिर मोटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर्स पे आके एंड अप हो जाएंगे. रिफ्लेक्स आर्क में हमारे पास रिसेप्टर्स हैं और सेंस ऑर्गन्स हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स, देन रिफ्लेक्स सेंटर जो कि होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, देन मोटर न्यूरॉन्स और फाइनली ये आर्क आके ख़त्म होगा ओवर द इफेक्टर्स. इफेक्टर्स हमारे पास मसल्स भी हो सकते हैं और अगर सलाइवा की प्रोडक्शन हो रही है तो सलाइवरी ग्लैंड्स फॉर एग्जांपल भी हो सकते हैं. द रिफ्लेक्सेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स दैट आर कंडीशनड एंड अनकंडीशनड. यहाँ पे हमने कंडीशनड रिफ्लेक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है. आपको साथ में मैं अनकंडीशनड भी बता दूँ. अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस हैं जो कि हमें इनहेरिटेंस में मिलते हैं, जो हम इनहिबिट करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमें भूख लगी हुई है और अपने किसी भी खाने के बारे में, फेवरेट खाने के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनड रिफ्लेक्स. कंडीशन रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो कि हम अपने टाइम के साथ अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं. अ रिफ्लेक्स एक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस और लर्निंग विद अ स्टिमुलस विच इज़ ओरिजिनली इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग द रिस्पॉन्स. We are going to study about an experiment. This experiment was conducted by Pavlov's
एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे। ये वो साइंटिस्ट था जिसने कि अनकंडीशनड रिफ्लेक्स और कंडीशनड रिफ्लेक्स पे काम किया। अनकंडीशनड रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्सेस हैं जो कि हम लोगों की बॉडी में बाय बर्थ होती हैं। डॉग के या कुत्ते के मुंह में पानी आ जाना या सलाइवा की प्रोडक्शन हो जाना गोश्त को देख के, दिस इज़ एन अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। कुछ अरसे के लिए पेल्पोप्स ने एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे जैसे ही उसके आगे गोश्त डाला, उस गोश्त के साथ ही वो कोई एक स्पेसिफिक टोन लगा देता था। अब कुछ अर्सा ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब वो सिर्फ टोन बजाता था तो कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता था, क्योंकि इसने इन दोनों चीज़ों को आपस में एसोसिएट कर दिया था। एसोसिएशन था बिटवीन द फूड एंड द टोन। सो दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल रिफ्लेक्स। Now we are going to review the reflex arc. When the receptor detects the stimulus, it excites a sensory neuron. सबसे पहले रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करेगा और सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा to carry the message. The message travels through the sensory neuron to an interneuron in the central nervous system. Here we can see central nervous system is going to receive the message about the stimulus. सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ हमारे पास ब्रेन भी हो सकता है और स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। द मैसेज ट्रेवल्स थ्रू द इंटरन्यूरॉन टू अ मोटर न्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन से मैसेज आ जाएगा टूवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन। द मैसेज ट्रेवल्स थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स टू द इफेक्टर्स। फाइनली मोटर न्यूरॉन्स इस मैसेज को लेके जाएंगे टूवर्ड्स द इफेक्टर और इफेक्टर पे आके हमारा रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाएगा। द इफेक्टर इज स्टिमुलेटेड एंड इट्स रिएक्शन इज द रिस्पॉन्स। Dear students, here you can see a doctor who is examining the reflex action of this patient. जैसे ही हैमर से इसने हिट किया इसके नी को तो इसके पाँव ने झटका खाया and you can see the result. So this is an example of the reflex action. Thank you my very dear students for being here with me. Allah Hafiz.